Hello students, today we will discuss about our next topic, the debate over subsidies. It is also mainly related to our previous topic in which we have studied about our sector, the first one important sector of agriculture, that which kind of the policies has been adopted by the Indian economy in order to promote our agriculture sector, in which we have studied about the two major things. The land reforms was there, as well as the green revolution policy was implemented by the government in order to increase the agriculture productivity or in order to promote the agriculture sector. Now the question arises, we already studied about during the green revolution that some of the subsidies or some of the concessional loans as well as some of the things are provided at a low prices to the different farmers in order to produce more of the food grains in the agriculture sector. That is known as the subsidies. Means the main question is arising here, what do you mean by the subsidies? Subsidies refers to providing the things to the farmers at a very concessional rate, which rather than the rate existing in the market. So here the debate is regarding that kind of subsidies, कि क्या वो subsidies होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. No doubt the debate is there. It means some economists were in favor of providing subsidies and some economists were not in favor of providing subsidies. Now we will discuss about it, that how it can be justified. We will study regarding this thing. The debate over subsidy, the economic justification of subsidies in agriculture is at present a hotly debated question. No doubt this is a very much big question, that either the subsidies should be provided or not. It is generally agreed that it was necessary to use subsidies to provide an incentive for the adoption of new HIV technology. They are saying कि नो डाउट ये एग्री किया जाता है कि ये नेसेसरी है. किस चीज़ के लिए, क्या नेसेसरी है? सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना. किसके लिए प्रोवाइड करना? फॉर द फार्मर्स स्पेसिफिकली. वी कैन से द फार्मर्स, जनरली हम बात कहें कि फार्मर्स के लिए होनी चाहिए, बट स्पेसिफिकली फॉर द स्मॉल फार्मर्स. ये क्या काम करती है? इट जस्ट प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर द अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. कि इससे जो छोटे छोटे फार्मर्स है, दे विल जस्ट गेट मोटिवेटेड दैट दे कैन गेट दीज थिंग्स एट द लो प्राइजेस rather than the existing prices, then they can do it effectively. Any new technology will be looked upon as a being risky by the farmers. No doubt कि जो छोटे छोटे farmers are, they are not having that much of financial status that they can check any kind of technology very easily. It is so much risky as like the business organization. In that situation we can say कि subsidies क्या है, therefore it is needed to encourage farmers to test the new technology. बट ऑपोजिट साइड से अगर सोचा जाए तो सम ऑफ द इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट वंस द टेक्नोलॉजी इज़ फाउंड प्रॉफिटेबल, कि एक बार ये हो जाए कि टेक्नोलॉजी से बेनिफिट मिलना शुरू हो गया है एंड इज़ वाइडली अडॉप्टेड और इसको वाइडली लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, देन द सब्सिडीज़ शुड बी फेस्ड आउट. सब्सिडीज़ को क्या कर देना चाहिए? ख़त्म कर देना चाहिए, सिंस देयर पर्पज़ हैज़ बीन सर्व्ड, कि उनका पर्पज़ जो है वो अचीव कर लिया गया है. फर्दर सब्सिडीज़ जो है, दीज आर मेंट टू बेनिफिट द फार्मर, बट ए सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र सब्सिडी ऑल्सो बेनिफिट द फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री. दे आर सेइंग कि नो डाउट जो हमारी सब्सिडीज़ हैं, दिस इज़ द सेकेंड वन पॉइंट अगेंस्ट, कि जो सब्सिडीज़ हैं वो किसके लिए हैं? फार्मर्स के लिए हैं. बट उसका क्या होता है, ज़्यादातर प्रोपोर्शनेट जो है वो फर्टिलाइज़र सब्सिडी जो है वो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को ज़्यादा बेनिफिट करती है rather than the farmers. और अगर फार्मर्स की बात की जाए, देन द सब्सिडी लार्जली बेनिफिट द फार्मर इन मोर प्रोस्पेरस रीजन, कि ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, द एग्रीकल्चर कैन बी डन वेरी इफेक्टिवली, तो ये उन एरियाज़ के अंदर जो है फार्मर्स को ज़्यादा बेनिफिट देती है. सो देयरफॉर दे वर आर्ग्यू that there is no case for continue with the fertilizer subsidies, कि fertilizer subsidies को continue नहीं करना चाहिए, कि specifically जो target group है that is the small farmers, उसको ये benefit नहीं दे रहा. एंड नो डाउट अगर गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट खुद उस चीज़ का खर्चा कर रही है. दे आर जस्ट यूजिंग देयर ओन अमाउंट टू स्पेंड ऑन दैट फर्टिलाइजर्स ऑल्सो. तो ये जो है ये गवर्नमेंट के फाइनेंस पे भी बर्डन डाल रही है. Regarding this, we will also study one of the case thing there, prices as a signal later. On the other hand, now we will discuss
कि कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे भी हैं जो ये बिलीव करते हैं कि जो गवर्नमेंट है उनको क्या करना चाहिए, सब्सिडीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। वाई? बिकॉज फार्मिंग इन इंडिया कंटिन्यूज टू बी ए रिस्की बिजनेस, कि इंडिया के अंदर जो फार्मिंग है वो एक रिस्की बिजनेस है। मोस्ट फार्मर्स जो हैं वो ज़्यादातर पुअर हैं, वो इवन इस एबल भी नहीं है कि वो रिक्वायर्ड इनपुट्स को बिना सब्सिडीज़ के खरीद सकेंगे। एंड इफ़ द गवर्नमेंट विल एलिमिनेट द सब्सिडीज, इट विल अल्टीमेटली लीड टू द इनइक्वालिटी बिटवीन द रिच एंड पुअर फार्मर। फिर से क्या हो जाएगा, एक इनइक्वालिटी आ जाएगी, किसमें, रिच एंड पुअर फार्मर में, एंड वायलेट द गोल ऑफ इक्विटी। Are one of the goal, the fourth one goal of the 5-year plan was equity। और अगर ये चीज़ आ जाती है कि रिच और पुअर फार्मर में इनइक्वालिटी आ जाती है, इट विल ऑल्सो लीड टू द गोल ऑफ इक्विटी। After that, these experts also argue that if subsidies are largely benefited the fertilizer industry and big farmers, कि ये experts क्या कहते हैं कि अगर ये subsidies जो हैं ज़्यादातर पोर्शन में क्या कर रही हैं, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ को और बड़े बड़े फार्मर्स को बेनिफिट दे रही हैं, तो वहाँ पर क्या, किस चीज़ में प्रॉब्लम है, द करेक्ट पॉलिसी इज़ नॉट टू अबॉलिश सब्सिडीज़, कि जो करेक्ट मतलब कि सब्सिडीज़ को रिमूव कर देना ये करेक्ट पॉलिसी नहीं है, बट गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, दे शुड टेक सम स्टेप्स इन ऑर्डर टू इंश्योर कि जो सब्सिडी दी जा रही है या जो सब्सिडीज़ के जो बेनिफिट है दैट शुड बी गिवन ओनली टू द पुअर फार्मर्स। दीज वर द डिबेट ओवर द इन फेवर एज वेल एज अगेंस्ट द सब्सिडीज। नाउ वी विल ऑल्सो ड्रॉ सम कंक्लूजन्स हेयर। थस बाय द लेट ऑफ 1960 हम ये कह सकते हैं कि इंडिया की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है इट हैज़ बिन इंक्रीज्ड, नो डाउट कि ये इतनी सफिशेंटली इंक्रीज़ हो गई थी कि कंट्री के अंदर जो फूड ग्रेन्स हैं वो सेल्फ सफिशेंट हो सके, एंड नो डाउट दिस वाज एन अचीवमेंट ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी। बट ऑन द ऑपोजिट साइड, स्टिल एट द प्रेजेंट टाइम ऑल्सो अप टू द 1990 वी कैन से our 65% population was also depend upon the agriculture। तो इकोनॉमिस्ट को ये पता चला जैसे ही सिंपली कि नो डाउट हमारा नेशन जो है वो ज़्यादा प्रोस्पेरस बन सकता है, बट द प्रोपोर्शनेट ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाय द एग्रीकल्चर एज वेल एज द प्रोपोर्शनेट ऑफ द पॉपुलेशन वर्किंग इन दिस सेक्टर इट मस्ट बी डिक्लाइन। कि इंडिया के अंदर 1950 से 1990 तक में जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का वो तो डिक्लाइन कर रहा है। इट मीन्स द रेस्ट वन सेक्टर, द सर्विस सेक्टर एंड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग मोर जीडीपी, बट जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड इन द सेम प्रोपोर्शन। लाइक कि वो 67.5% 1950 में थे और 64.9% जो है वो 1990। No doubt we can say that a lot of big of the population proportionate are engaged in agriculture। तो agriculture output still, एग्रीकल्चर आउटपुट ड्यू टू द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर आउटपुट जो है वो सेम टू सेम ग्रो किया जा सकता है विद द लेस पीपल वर्किंग इन दिस सेक्टर। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑफ इट? द रीज़न इज़ दैट द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द सर्विस सेक्टर डिडंट एब्जॉर्ब द पीपल वर्किंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो बहुत से इकोनॉमिस्ट ने इस चीज़ को एक सिंपली कहा दैट वाज द फेलियर ऑफ द पॉलिसीज ऑफ 1950 to 1990। In this topic we have studied about the policies adopted by the Indian economy for the agriculture sector, in which we have studied the major two topics, land reforms and green revolution। After that we have also studied regarding this debate over subsidies, it should be made or not, and the conclusion we can say still no doubt the productivity was increased but the population depend on agriculture was not decreased। प्राइजेज एज ए सिग्नल, नो डाउट इन आर इकोनॉमिक्स वी कैन से कि जो प्राइजेज हैं दे जस्ट डिटरमाइन द मार्केट। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो प्राइजेज हैं दैट इज़ ए सिग्नल फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। इट मीन्स कि अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइजेज मार्केट में बढ़ते जा रहे हैं एज पर द लॉ ऑफ डिमांड, सिंपली दैट देयर वाज ए बेसिक थिंग कि अगर प्राइजेज इंक्रीज होते हैं डिमांड कम हो जाती है, प्राइजेज डिक्रीज होते हैं डिमांड इंक्रीज हो जाती है। बट सिंपली द प्राइजेज आर ए सिग्नल। प्राइजेज क्यों बढ़ते हैं कि इकोनॉमी के अंदर किसी प्रोडक्ट के एज पर द डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। प्राइजेस तब बढ़ते हैं जब किसी प्रोडक्ट की सप्लाई जो है उसकी जो अवेलेबिलिटी है दैट इज़ लेस देन द डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट, राइट। इन दैट केस प्राइजेस राइज होते हैं तो लोग क्या करते हैं, उसे कम यूज़ करना शुरू कर देते हैं,
उसे बड़े ही सोच समझ के यूज़ करते हैं, सो दैट व्हाट हैपन कि उसको ज़्यादा प्राइजेस पे उतनी ही परचेज़ की जाए कि उसकी वेस्टेज ना हो। एज लाइक दे आर ऑल्सो गिविंग द एग्जाम्पल कि अगर प्राइजेस वाटर के बढ़ा दिए जाएँ, उसकी सप्लाई कम होने, तो लोग क्या करेंगे, वो अपने पानी को ज़्यादा केयर से यूज़ करेंगे, वो गार्डन में भी पानी डालना, वाटर को कंजर्व करने के लिए छोड़ देंगे। व्हेन एवर जब प्राइजेस पेट्रोल के बढ़ते हैं तो इससे क्या होता है, रीज़न इज़ दैट द पेट्रोल इज़ अ स्कार्स रिसोर्स, और प्राइजेस उसका एक सिग्नल होता है कि लेस पेट्रोल इज़ अवेलेबल। उससे भी लोग क्या करते हैं, पेट्रोल को कम यूज़ करना शुरू कर देते हैं अल्टरनेट फ्यूल्स में। और कुछ इकोनॉमिस्ट ने यह भी पॉइंट आउट किया कि सब्सिडी जो है, अगर आप सब्सिडीज़ देंगे तो वो प्राइजेस को इस बात के लिए लो नहीं करेंगे, नो डाउट। उससे आप एक इंडिकेशन नहीं ले सकते कि इकोनॉमी के अंदर सप्लाई कितनी है गुड्स की। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर आर प्रोवाइडेड एट ए सब्सिडाइज्ड रेट, तो वहाँ पर क्या होता है, फार्मर्स दे डोंट पे अटेंशन टूवर्ड्स द थिंग्स, दे जस्ट यूज़ इट इन अ वेस्टफुल मैनर, दे डोंट पे अटेंशन बिकॉज ऑफ दे डू नॉट हैव टू पे फॉर दैट। वो ऐसी ऐसी क्रॉप्स ज़्यादा यूज़ करते हैं जहाँ पर पानी की, रेदर देन दे अपने क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखने की बजाय दे ट्राई टू यूज़ ए दैट काइंड ऑफ क्रॉप्स ऑल्सो। तो अगर यहाँ पर सिंपली फर्टिलाइज़र्स हो गए, पेस्टिसाइड सब्सिडीज़ हो गई, इससे भी क्या होता है, ओवर यूसेज होता है रिसोर्सेज का, दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। And water subsidies, electricity subsidies also use the wastage, also lead to the wastage of that resources. So subsidies, no doubt, it also give an incentive for the wasteful use of resources. So in terms of incentives, अगर हम subsidies के बारे में सोचें तो we cannot say that it is the wise decision from the economic viewpoint to provide free electricity to फार्मर्स। दैट वाज अ सिंपली थिंग कि जैसे एक प्राइजेस सिग्नल होते हैं किसी चीज़ की स्कार्सिटी के, तो ऐसे ही सब्सिडीज़ अगर प्रोवाइड की जाएंगी इकोनॉमी में तो प्राइजेस की वैल्यू जो है वो नहीं रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वन टॉपिक, दैट इज़ द इंडस्ट्री एंड ट्रेड।